Buy signal triggered in Nifty as per our X1 system, but Bank Nifty is still in sell signal only. So what to do next week in Nifty, Bank Nifty, and stocks and commodities? Let us discuss in this video as per our X1 system. This is X1 system chart. You can see this is Nifty chart. ये Nifty का chart है, cash spot का chart है ये. So spot का chart में देख लीजिए, you will get this particular hash symbol. अगर ये hash नहीं है तो there is no futures symbol. And this system X1 system is specially made for swing trading, and you can trade any market, any instrument with this system, not only for Indian market. You can trade any instrument. यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे instruments का डेटा फिर मिल जाता. You can see NSE futures, NSE cash, MCX, NCDX, and you can see forex, cryptos. Lot of instruments are there. And international market folder, you can see gold, silver, copper, all COMEX instruments will come. And you can see global index also. You can see DAX, Dow Jones, Nasdaq, Swiss SMA बोले तो that is Switzerland index, Bovespa, Brazil, Nikkei, Japan का index है. So all these things you can see in this particular ये जो platform है, this is MT4 platform, and this is known for its stability. It is being used by many forex traders throughout world. It is mostly used software trading platform. And in this platform we have made our X1 system, and this is completely rule based trading system. यहाँ पे किसी भी मार्केट में आप गेस करने का जरूरत नहीं है. 100% रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है. एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस एवरीथिंग इज रूल बेस्ड इन दिस वन. किसी भी चार्ट में आप गेस करने का जरूरत नहीं रहता. एंड यू कैन सी टाइम फ्रेम्स हियर, विच आवर टाइम फ्रेम यू वांट यू कैन ट्रेड. बट फॉर इंडियन मार्केट्स वी प्रेफर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर स्विंग ट्रेडिंग. अगर आप इंट्राडे में काम करना बोलते तो वी हैव गॉट X3 एंड X4 दोनों सिस्टम से, विच आवर इज okay for some people prefer X3, some people prefer X4. This is our latest system. अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये दोनों में किसी भी ले लीजिए इंट्राडे के लिए. X4 से आप 1 मिनट में भी काम कर सकते हैं, बट X3 वी प्रेफर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम अच्छा रहता है X3 के लिए. बट फॉर स्विंग ट्रेडिंग X1 सिस्टम में यूज़ करना चाहिए. एंड इसमें स्पॉट चार्ट क्यों देख रहे बोले तो लास्ट वीक आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन ऑल stocks. Every stock में problem आ रहा, gap up का on the first day of the expiry. That is the reason we have shifted to spot charts. You can see almost I'm tracking about 80 stocks. Around 80 stocks. You can see almost all are cash stocks here. Earlier we used to see futures chart. Now also you can see Nifty ka, this is futures chart here. You can see the Nifty here, but the problem is on expiry day, first day of this one new expiry, there will be a problem. गैप ओपन गैप डाउन बिकॉज ऑफ द चार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो रहा है. दैट इज द रीजन वी हैव शिफ्टेड टू स्पॉट चार्ट. सो इसमें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, जो भी डिफरेंस है स्पॉट एंड फ्यूचर्स वो डिफरेंस ऐड करना. सिंपल बात है. वॉट एवर इज योर ट्रिगर प्राइस, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 100 रुपीज इज योर ट्रिगर प्राइस. स्पॉट एंड फ्यूचर्स का डिफरेंस अगर 2 रुपीज है तो 102 पे ऑर्डर लगाइए. सिंपल बात है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है. इससे क्या होता है बोलते तो चार्ट में डिस्टर्बेंस नहीं होता, स्टेबल चार्ट रहता. सो गैप अप्स एंड गैप डाउन्स एवरीथिंग विल बी ऑब्जर्व्ड इन दिस फॉर्म. So we have decided to use spot charts only till December 31st. Afterwards, if any changes there, I'll inform you. And this में देख लीजिए निफ्टी का चार्ट में we have a sell signal running. This was sell signal. ये आपको valid signal नहीं था यहाँ पे. Somewhere it has become valid. क्यों बोले तो ये क्यों valid नहीं है, क्यों invalid है, ये सब आपको ट्रेनिंग वीडियोस में रहता. Not interested to explain here because it will take time. Basically देख लीजिए first of all ये चार्ट में अभी आपको यहाँ पे देयर इज अ बाय सिग्नल. ये बाय सिग्नल आते ही बाय नहीं करना चाहिए. दिस इज वन बाय सिग्नल, दिस इज वन बाय सिग्नल. इसको X1 सिग्नल बोलते हैं, इसको अपन F10 सिग्नल बोलते हैं. ये दोनों भी आपको सिग्नल्स आ गया था. सो एरो आते ही बाय नहीं करना चाहिए, नहीं तो X1 सिग्नल आते ही बाय नहीं करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल विच एवर चार्ट यू वांट टू ट्रेड, ये चार्ट ओपन करते ही आप ये नीचे जोन क्या बोल रहा बोल के देखना चाहिए. यू कैन सी दिस इज स्टेडी ऑफ जोन्स इंडिकेटर. ये जोन में अगर ये रेड कलर है तो इट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंडिंग जोन, अगर ग्रीन है तो इट इज कॉल्ड अप ट्रेंडिंग जोन, एंड इसमें ग्रे कलर है तो इट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंडिंग जोन. यहाँ पे देख लीजिए अभी तो ग्रे कलर है, बट दिस इज नॉट द वे टू सी दिस वन. कलर चेंज हमेशा आप जीरो क्रॉस ओवर ऑफ ऑसिलेटर से देखना चाहिए. सो ये जीरो क्रॉस ओवर का पॉइंट है. ये जीरो क्रॉस ओवर देख लीजिए. आई एम जस्ट ड्राइंग ऑन वर्टिकल लाइन हियर. सो यहाँ से देखना चाहिए. सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर दिस वन इट इज इन
डाउन ट्रेंडिंग जोन क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए देयर आर मेनी डॉट्स हियर, इफ यू गेट मोर देन 21 डॉट्स इट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो एज ऑफ नो आपको ग्रे कलर दिख रहा, बट दिस इज नॉट नो न्यूट्रल जोन. अगर ये यहाँ पे देख लीजिए इट इज टोटली ग्रे कलर, इट इज न्यूट्रल जोन. पहले न्यूट्रल जोन में था, बाद में इट हैज कम इनटू डाउन ट्रेंडिंग जोन. डाउन ट्रेंडिंग जोन में आपको दो टाइप्स ऑफ डाउन ट्रेंडिंग जोन रहता. आई विल शो यू सम अदर चार्ट. लेट अस गो टू दिस वन, नो एनी चार्ट. लेट अस गो टू सीमेंस. ये भी आपको ये है, रिबन नहीं है. लेट अस गो टू सम अदर JSW स्टील. चलो JSW स्टील में आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे रेड कलर रिबन इज देयर, इट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंडिंग जोन. ग्रीन है तो इट इज कॉल्ड अप ट्रेंडिंग जोन. और ये देख लीजिए जीरो क्रॉस ओवर के बाद में फॉर सम टाइम नो इट वाज इन ग्रे कलर. सो ये न्यूट्रल जोन में था ये एरिया में. न्यूट्रल जोन के बाद में इट हैज गिवन यू डाउन ट्रेंडिंग जोन. इसको अपन सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन बोलते हैं. 21 डॉट्स आए तो, एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन. दोनों में डिफरेंस क्या बोले तो थोड़ा ये कम फोर्स रहता है. लेसर फोर्स विल बी देयर इन दिस वन, बट इन दिस नो फर्स्ट ग्रेड अप ट्रेंडिंग जोन देयर विल बी फुल फोर्स. ये सब आपको ट्रेनिंग वीडियोस में एक्सप्लेन कर, एक बार देख लीजिए. यू कैन गो थ्रू अवर चैनल X1 ट्रेडर. यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज अवर चैनल X1 ट्रेडर. यू कैन गो टू प्लेलिस्ट सेक्शन. प्लेलिस्ट में यू कैन सी X1, X2, X3, X4, ये 4 सिस्टम्स आर देयर. एंड आयरन फ्लाई बोल के हमारे पास एक सेपरेट ट्रेनिंग कोर्स है. दिस इज नॉट नॉर्मल आयरन फ्लाई, इसको हम X1 आयरन फ्लाई बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, वी हैव mixed X1 system with this one. We will give you one setup which will filter out which will give you which will be useful for adjustment of iron fly. So this one it's a very good strategy if you want consistent weekly and monthly income irrespective of gap up and gap down. मार्केट ऊपर भी जाने दो, नीचे भी जाने दो, आपको लॉस नहीं आता. कितना प्रॉफिट आता नहीं बोल सकते, बट लॉस तो नहीं आता. प्रॉफिट विल डिपेंड अपॉन द एक्सपायर लेवल. सो आपको इंटरेस्ट है तो इसमें आ जाइए. एंड X1 सिस्टम इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग. एंड एक सेकंड, X1 सिस्टम जो है ना, दिस इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग. एंड X2 इज फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग इन हायर टाइम फ्रेम्स. आपको 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर्स ऐसा अच्छा रहता. इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल टाइम फ्रेम्स. X3 इज गुड फॉर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम. एंड X4 इज अवर लेटेस्ट सिस्टम विच इज स्पेशली मेड फॉर ऑप्शन सेलर्स एज वेल एज ऑप्शन बायर्स. 1 मिनट में आप काम करो, इसमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता. 5 मिनट्स, 10 मिनट्स वो सब आपको अच्छा रहता. बट बेसिकली ये 1 मिनट में मैं एडजस्टमेंट्स वगैरह कैसे करना, ऑप्शन सेलिंग कैसे करना, वो बेसिस पे बनाए सो है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो टू द ट्रेनिंग वीडियोस. ये वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल है. सो लेट अस गो बैक टू निफ्टी चार्ट. निफ्टी में क्या चल रहा भाई, इसके पहले ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में था. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन यू कैन सी 21 डॉट्स हैव कम, डाउन ट्रेंडिंग जोन में था. And here you got a buy signal here. This was already explained in the previous video. So previous sell signal इसके पहले अप ट्रेंडिंग जोन में था. अच्छा, ये पहले क्यों देखना बोले तो, अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो सेल करने के लिए बोले तो अगेंस्ट जाने के लिए, इसका अगेंस्ट जाने के लिए वी नीड 3 कंडीशंस. बाई करने के लिए ओनली 2 कंडीशंस आर इनफ. अगर डाउन ट्रेंडिंग जोन में है तो किसी भी स्टॉक सेम डायरेक्शन में जाने के लिए आपको 2 कंडीशंस चाहिए, बट अपोजिट डायरेक्शन में जाना बोलो तो 3 कंडीशंस चाहिए. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस. न्यूट्रल जोन में तो सेम जाओ या बाई करो या सेल करो, ओनली 2 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड. सो ओनली आपको अप ट्रेंडिंग जोन में इसका अगेंस्ट जाने के लिए, ये जो जोन है ना, इसका अगेंस्ट जाने के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन दिए. बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कंडीशन यू आर गेटिंग एक्यूरेसी इन दिस सिस्टम. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये सब आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करें, सो ट्रेनिंग वीडियो में देख लीजिए. सो दिस इज नॉट वैलिड हियर, इट हैज बिकम वैलिड समवेयर. एंड यहाँ पे प्रॉब्ली समवेयर हियर इट हैज गिवन यू वैलिड सेल सिग्नल. सो एरो आते ही बाय नहीं करना, सेल नहीं करना चाहिए. कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, देन ओनली दैट इज वैलिड सिग्नल. एंड उसके बाद में यू कैन सी दिस पर्टिकुलर डे इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे देख लीजिए, ये बाय सिग्नल आया था. इट्स अ वेरी गुड सिग्नल. दिस इज द 4th बेस्ट बाय सिग्नल इन आवर सिस्टम. क्यों बोलते हो, ये जीरो क्रॉस ओवर के बाद में दिस इज द फर्स्ट बाय सिग्नल. सो दिस इज वेरी गुड सिग्नल. इस दिन ट्रिगर भी हो गया था. आई जस्ट पुट अ पीरियड सेपरेटर. देख लीजिए, आपको मेनी पीपल गॉट ट्रैप्ड इन दिस एरिया, बट यू आर नॉट ट्रैप्ड. दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ X1 सिस्टम. यहाँ पे देख लीजिए, ये बाय सिग्नल ट्रिगर हो गया. बट हम क्या करते हैं हमारा सिस्टम में, X1 सिस्टम में, इफ़ यू वांट टू कीप पोजीशन, अगर आप ओवरनेट पोजीशन लगाना चाह रहे तो दिस पर्टिकुलर लाइन, ये जो लाइन है ना, ये ऊपर से पिंक कलर में आ रहा. देखो मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ. देखो, ये पिंक कलर का जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड HTF इंडिकेटर. HTF बोलते हाइयर टाइम फ्रेम इंडिकेटर. ये ब्लू है तो ही अपन इसमें
बाई पोजीशन लगाते, ये ब्लू नहीं है तो ओवरनेट पोजीशन नहीं लगाते। क्यों बोले तो 70% ऑफ टाइम अगर ये पिंक है तो गैप डाउन आने का चांस रहता, अगर ये ब्लू है तो गैप अप आने का चांस रहता। 70% ऑफ टाइम, हमेशा 100% ऐसे ही होता भाई बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो टाइप का मार्केट में नहीं चलता। 100% वाला किसी भी काम नहीं है, किसी भी चीज़ नहीं है, किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है 100% का। इफ एनीबडी इज टेलिंग यू दैट्स ए फॉल्स थिंग। व्हाट नो वी अंडरस्टूड फ्रॉम मार्केट इज यू कैन रिकवर लॉस। हमारा सिस्टम में क्या होता भाई, अगर लॉस हुआ तो रिकवर करते, इंट्राडे में रहने दो या पोजिशन में रहने दो, लॉस रिकवर करते। वी हैव गिवन सो मेनी एग्जांपल्स। अभी इसमें भी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद में। सो यहाँ पे क्या हो गया बोले तो यू गॉट अ बाय सिग्नल दैट इज ट्रिगर्ड एंड देन दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर इज नॉट सपोर्टिंग। बाय द एंड ऑफ द डे 325 तक अपन वेट करते हैं, सपोर्ट नहीं कर रहा हो तो इसको आप निकल जाओ, पहले तो ये पोजीशन क्लोज करो। क्लोज करने के बाद में नेक्स्ट डे यू हैव टू सी, नेक्स्ट डे देयर वाज अ गैप अप भाई, तो क्या करते हैं अपन 15 मिनट का हाई के ऊपर अपन बाय ऑर्डर लगाते, वो तो अभी ट्रिगर नहीं हुआ था। सो यू आर नॉट ट्रैप्ड हियर एंड आफ्टरवर्ड्स यू गॉट अ सेल सिग्नल, यहाँ पे सेल करना चाहिए था। और सेल करने के बाद में देख लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसा काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा काउंट कर रहा हूँ 1 2 3। यहाँ पे देख लीजिए 5 8 हो गया, 13 हो गया, 18 हो गया, 21 जो भी है, तो ये ट्रेंडिंग सेमी ट्रेंडिंग जोन में चले गया, सॉरी ट्रेंडिंग जोन में चले गया। सो ट्रेंडिंग जोन में जाते ही, ट्रेंडिंग जोन में कहाँ गया भाई, ये पर्टिकुलर नो लास्ट डॉट जो है ना यहाँ पे, ये ट्रेंडिंग जोन में चले गए। इफ यू वांट यू कैन काउंट, नो ऐसा काउंट कर सकते हैं, ये पूरा मिलाना चाहिए। ये पहले जो 3 आया था और ये तीनों मिलाना चाहिए। क्यों बोलते हो, देयर इज नो रूल दैट नो कंटिन्यूसली इट हैज टू कम। सो दिस पर्टिकुलर नो, एक बार ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में, एज आई टोल्ड यू, इफ यू वांट टू टेक अ बाय सिग्नल यू वांट 3 कंडीशंस, बट यहाँ पे देख लीजिए ओनली 2 कंडीशन है आपका। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये दोनों आए तो फर्स्ट कंडीशन है, और फिल्टर कैंडल बॉक्स बोल के कंडीशन रहता है वो सेकंड कंडीशन है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने का बहुत टाइम लेता है, वो सब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो मेन पॉइंट इज नो, दिस इज वैलिड सिग्नल ट्रिगर्ड बट नेक्स्ट डे यू हैव क्लोज्ड इमीडिएटली, नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू हैव शॉर्टेड हियर बिकॉज नो दिस सिग्नल गॉट ट्रिगर्ड। सो ये सेल सिग्नल चल रहा अपने पास, दिस वाज योर स्टॉप लॉस। उसके बाद में देख लीजिए बाय सिग्नल आया था बट दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, ये भी वैलिड सिग्नल नहीं है, ये भी वैलिड सिग्नल नहीं है। एंड अगेन यू गॉट अ सेल सिग्नल, यहाँ पे सेल नहीं करना। क्यों बोले तो ऑलरेडी अपना सेल सिग्नल चल रहा, अगर ये फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ में सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया तो लेट अस से ये 101 सॉरी 99 में मिले तो ले लो, बट जाके मैं 94 में करता हूँ, 95 में करता हूँ, 92 में करता हूँ, बोलो 8 रुपीज़ का डिफरेंस है, 8% का डिफरेंस है 100 रुपीज़, बोलो तो ये परसेंटेज बेस भी नहीं देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से व्हाट इज द वैल्यू हियर भाई, ये 19,590, 19,590 580 में आप सेल करें, जाके आप 480 में क्यों सेल करते हैं, 100 पॉइंट्स के नीचे क्यों सेल करते हैं? ऑलरेडी जो पुराना सिग्नल है दैट इज ट्रिगर्ड, नो दैट इज कंटिन्यूइंग। ये एरिया व्हेन यू गॉट दिस पर्टिकुलर कंडीशन, व्हेन HTF is not supporting and when this particular color changed here, देन दिस इज अ पॉइंट टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो हमारा सिस्टम है, दिस इज वेरी गुड पॉइंट टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन। सो शॉर्ट करने के बाद में क्या होगा देख लीजिए, डाउन ट्रेंडिंग जोन कंटिन्यूइंग। सो इसमें आपको ऐसा चार्ट देख लीजिए क्या पता चलता इन डाउन ट्रेंडिंग जोन। इसके पहले मैं हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस में आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली दैट जस्ट रिमूव पीरियड्स ऑपरेटर। डाउन ट्रेंडिंग जोन में हमेशा वेट फॉर अ बाय सिग्नल, ये सिग्नल आपको यहाँ पे आ गया था ऑफ डाउन ट्रेंडिंग जोन स्टार्टेड। सो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ऐसा ड्रा कीजिए एंड हियर यू ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड साइन वेव स्ट्रक्चर। ये होने का चांस है, नहीं तो और एक क्या हो सकता बोल तो ऐसा नीचे आके यहाँ तक ऊपर गया, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे, दिस इज कॉल्ड साइन वेव सॉरी एक्सपैंडिंग वेव स्ट्रक्चर। सो ये दोनों में किसी भी एक स्ट्रक्चर आता, ये स्ट्रक्चर में लॉट ऑफ पीपल ट्रैप हो जाते हैं साइन वेव स्ट्रक्चर में, बट यहाँ पे तो साइन वेव स्ट्रक्चर नहीं मिला। नेक्स्ट डे मॉर्निंग नो यहाँ पे देख लीजिए नीचे इट हैज गॉन डाउन। सो इफ यू हैव शॉर्टेड समवेयर हियर, वी वर एट दिस पॉइंट नो वी वर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर कैंडल। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करें तो व्हेन दिस पर्टिकुलर कलर चेंज टू रेड कलर, यहाँ पे शॉर्ट करें तो देन यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट। दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, ये आपको कंटिन्यूस सिग्नल है। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या बोलते हो, ऑलरेडी हमारे पास सेल सिग्नल चल रहा, बाई में जाने के बाद में ही अपन सेल करते हैं। यहाँ पे बाई में नहीं गया था, दैट इज द रीजन दिस इज अ कंटिन्यूस सिग्नल, इसमें अपन काम नहीं करते। एंड आफ्टरवर्ड फाइनली यू गॉट अ बाई सिग्नल। यहाँ पे भी आपको ये दोनों सिग्नल आए तो इनफ नहीं है, ये कंपलसरी
सेकंड थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। थर्ड कंडीशन थोड़ा डिफिकल्ट है, ये कल सेटिस्फाई हो गया था, कल इसमें बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया। सो निफ्टी में बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया, बट सी आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट नो दिस पर्टिकुलर सिग्नल इज अ वीक बाई सिग्नल। whenever you are going long in up डाउन ट्रेंडिंग जोन, ये वीक सिग्नल है। और whenever you are shorting, ये जो है ना, ये अप ट्रेंडिंग जोन में शॉर्ट करा बोलते दैट इज वीक सेल सिग्नल। वीक बोले तो अभी ऐसा गिरना ही नहीं है बोल के उसका मीन नहीं होता, गिरता पर थोड़ा रुक रुक के गिरता। इन द सेम वे व्हेन वी हैव दिस ये बाई सिग्नल, अभी ये जो ट्रिगर हो गया था कल, ये थोड़ा रुक के थोड़ा कल गैप अप आने का चांस है, गैप अप आने के बाद में थोड़ा फिर नीचे थोड़ा ऐसा लिटिल बिट ऑफ दिस काइंड ऑफ मोमेंट विल कम। क्यों बोले तो ये जो ऑसिलेटर है ना, जब तक ये जीरो क्रॉस ओवर नहीं होता, कल शायद 4-5 कैंडल बन गए तो 5 या 6 कैंडल बन गए तो इधर 6th और 7th कैंडल में दिस विल गिव यू जीरो क्रॉस ओवर। जीरो क्रॉस ओवर होने के बाद में देयर विल बी अ चांस ऑफ शार्प पुल बैक, ठीक है। दैट पुल बैक विल डिसाइड द फेट ऑफ निफ्टी। सो अभी तो बेसिकली ट्रिगर हो गया। यूएस मार्केट में एक्सेलेंट सेटअप है, देख लीजिए यूएस मार्केट में। दिस इज डाउ जोन्स चार्ट, डाउ जोन्स में डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा। ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में ये इनवैलिड है, कैसे इनवैलिड है अभी आपको एक्सप्लेन किया ना मैं। यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग जोन, फुल डाउन ट्रेंडिंग जोन में यहाँ पे ओनली वन सिग्नल, ये हाफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ यहाँ पे। सो दिस इज शॉर्टिंग पॉइंट। बहुत लोग यहाँ पे बाई करके गए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मार्केट में नीचे देख लीजिए गॉट दिस काइंड ऑफ थिंग। सो नाम से मतलब नहीं है, बेसिकली एवरी मार्केट इज सेम। एवरी मार्केट में आपको जो साइकोलॉजी है, ट्रेडर्स का साइकोलॉजी सेम। सो दिस इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई साइकोलॉजी। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, दिस इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई एंड साइकोलॉजी, दैट इज द रीजन इट इज गिविंग यू एक्यूरेट रिजल्ट। सो यहाँ पे सेल सिग्नल तो ट्रिगर हो गया, उसके बाद में दिस पर्टिकुलर एरिया ये जो एरिया में अगर आप ट्रैप नहीं हो गए तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। मेनी पीपल विल बी ट्रैप्ड इन दिस कंसोलिडेशन। निफ्टी में भी जाइए, क्या होता है भाई, लॉट ऑफ पीपल माइट हैव लॉस्ट मनी इन दिस एरिया। बाई कर होंगे, फिर सेल, फिर बाई, फिर सेल, फिर बाई। आपको अल्टीमेटली कल शायद डर के बहुत ज़्यादा निकल गए होंगे। हमारे पास तो एक्सेलेंट लॉन्ग पोजिशंस आर देयर। So let us see what will happen. I am expecting 19,800 tomorrow morning itself in futures. So probably options में spot में 19,750 आने का चांस है। अभी तो 650 पे है, so 800 आने का चांस है। ये भी स्पॉट में भी 19,800 तक जाने का चांस है। अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल गया तो, डॉ जोन्स में और थोड़ा मोमेंटम आ गए तो वी आर गोइंग फॉर 20,000। ये आप लिख के रख लीजिए, ये वीक में अपन 20,000 तक जाने का चांस है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ बोले तो, डॉ जोन्स में देख लीजिए, अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर लिए तो वी यूज टू टेल यू वन स्टॉप लॉस। अगर आपको ये डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा ना, तो किसी भी सिग्नल, सेल सिग्नल चल रहा बोले तो एक आउटसाइड डे बोल के फॉर्मेशन आता। जनरली आपको ये ट्रेंडिंग जोन्स हमेशा नहीं, एक 40% 50% ऑफ टाइम आउटसाइड डे से रिवर्स होता। ये कल का मूवमेंट पूरा आउटसाइड डे है। आउटसाइड डे क्या है बोले तो, फर्स्ट प्रीवियस डे का लो, ये देख लीजिए, आपको ये प्रीवियस डे का लो है और ये प्रीवियस डे का हाई है। दिस इज दी लाइन। ये लाइन्स आपको ऑटोमेटिकल ड्रा हो जाता है मार्केट अपना सॉफ्टवेयर में। सो कल क्या हो गया भाई, रनिंग मार्केट में व्हेन मार्केट इज क्लोज वी वर समवेयर हियर। अपना मार्केट जब क्लोज हुआ था, डॉ जोन्स वाज समवेयर हियर, इट वाज शोइंग अराउंड 100 पॉइंट्स या 50 पॉइंट जो भी है, कुछ पॉजिटिव दिखा रहा था। उसके बाद में सम न्यूज़ हैज कम, जॉब्स रिपोर्ट कुछ आया था, उसके बाद में देख लीजिए मार्केट हैज गॉन डाउन। सो लो ब्रेक डाउन हो गया था। लो ब्रेक डाउन होके, लो कौन सा लो है, प्रीवियस डे का लो। प्रीवियस डे का लो ब्रेक डाउन होके प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट हो गए तो दैट इज कॉल्ड आउटसाइड डे फॉर्मेशन। यहाँ पे डबल आउटसाइड डे भी आ गया था। दैट इज द रीजन ये मोस्ट पावरफुल मूवमेंट है। कल मॉर्निंग अगर इसमें फॉलो थ्रू आए तो वी आर गोइंग फॉर 20,000 नेक्स्ट वीक। ये रिवर्सल सिग्नल जनरली आपको ऐसे ही आता। अभी तो डाउन ट्रेंडिंग जोन में है, अभी ये कंप्लीट नहीं आया था, बट बेसिकली इसमें तो ये बाई ट्रिगर हो गया अपना, ठीक है। ये एज पर आउटसाइड डे सिग्नल, नो कंडीशन रिक्वायर्ड। सो डॉ जोन्स में बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया। सो दैट इज द रीजन अपना मार्केट में भी कल बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होने का चांस है। सो वेट फॉर 19,800। अगर आपको अच्छा मूड है तो मार्केट में 20,000 भी इजीली जाने का चांस है सब। बट बेसिकली यहाँ पे आप ऑब्जर्व क्या करना बोले तो, ये जो एरिया में जो लोग ट्रैप नहीं होते, दे विल मेकिंग मनी इन दिस मार्केट। दैट इज रीजन मैं क्या बोलता हूँ बोले तो, किसी भी सॉफ्टवेयर परचेज करने के पहले
लुक एट कंसोलिडेशन एरिया, कंसोलिडेशन में वो सॉफ्टवेयर कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे सिग्नल्स दे रहा है। हमारे पास सिग्नल्स आता, बट ऑल सिग्नल्स आर नॉट वैलिड सिग्नल। ये जो है ना, ये पूरा फिल्ट्रेशन हो गया था बिकॉज ऑफ और कंडीशंस। दैट इज द रीजन हम क्या बोलते हैं, रूल बेस्ड ट्रेडिंग में काम करो, इमोशंस से काम मत करो। रूल बेस्ड ट्रेडिंग में काम करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डर नहीं रहता, नहीं तो हमेशा एवरी डे नो, अरे कल क्या होता, अभी क्या होता, आधा घंटे बाद में क्या होता बोल के डरते रहते बहुत जने। सो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में काम कीजिए हमेशा। यू विल बी ए विनर इन दिस मार्केट। कितना कमा सकते हैं वो नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल नो, लास्ट नो ये जो ना, ये जो मूवमेंट था, ये डायरेक्ट नो एवरीडे अप 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 ऊपर ही जा रहा मार्केट। सो अगर आप इसको कैच करो तो शायद नो 1000 पॉइंट्स के ऊपर का मूवमेंट आई है। 19,400 से 20,200, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का मूवमेंट है। सो 40,000 रुपीज़ ओनली फ्रॉम वन लॉट ऑफ निफ्टी इन दैट वन। बट यहाँ पे इतना नहीं है ना, ये रुक रुक के ऊपर नीचे करके आ गया था। दिस इज व्हाट विल हैपन जनरली बुल मार्केट में, यही होता। so, अपन बुल मार्केट में है, अदर मार्केट्स आर नॉट नो सपोर्टिंग अस। दैट इज द रीजन नो, थोड़ा गिरते वक्त गिर रहे अपन, थोड़ा कम गिर रहे और थोड़ा फास्ट ऊपर जा रहे। सो दिस टाइम ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आवर परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू एंड वी आर गोइंग टू सी 20,000। उसके बाद में प्रॉब्ली बाय दिस नो, ये दसरा तक ये 20,200 भी एक बार टच होने का, नहीं तो क्रॉस होने का चांस है, इफ देर इज नो बैड न्यूज फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स। सो दिस इज द सेटअप इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। देख लीजिए, बैंक निफ्टी में भी आपको सिमिलर स्ट्रक्चर इज देयर एंड इसमें भी एर्लियर अप ट्रेंडिंग जोन था, उसके बाद में दिस वाज नो सेल सिग्नल, वीक सेल सिग्नल। बट नो, इंडेक्स में तो अपन पूरा काम करते हैं, वीक सिग्नल में काम करते हैं, सभी में काम करते हैं। सो सेल सिग्नल में देख लीजिए, वीक में जनरली क्या होता है बोलते हो, वीक में आप सेल करने के बाद में थोड़ा ऊपर आता और एक बार शॉर्ट करने के रेडी रहना चाहिए ना, तो हेडजिंग से काम कर सकते हैं आप। अगर आप शॉर्ट करें तो कुछ पुट ऑप्शंस सेल करके उसको हेज कर सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स होते हैं, नहीं तो हमारा ट्रूथ इंटू बोल के एक स्ट्रैटेजी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें ये एरिया देख लीजिए, यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन निफ्टी। सो यहाँ पे यू गॉट अ बाय सिग्नल, ये जीरो क्रॉस के बाद में फर्स्ट बाय सिग्नल इज कॉल्ड नो फोर्थ बेस्ट बाय सिग्नल। सो वी हैव गॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट ऐसा है। ये ऑलरेडी आपको मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। बट ये वैलिड सिग्नल नहीं है, ये दोनों भी आया था, वैलिड नहीं है। दिस इज शॉर्टिंग पॉइंट, इफ यू हैव शॉर्टेड यू गॉट एक्सीलेंट प्रॉफिट। उसके बाद में व्हेन द सिग्नल हैज कम इट्स ओनली कंटिन्यूएशन। सो देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल फिल्ट्रेशन हमारा सिस्टम में। दिस नॉट वैलिड, इट्स कंटिन्यूएशन नॉट वैलिड, और इसके बाद में अगेन नॉट वैलिड, अगेन कंटिन्यूएशन एंड समवेयर हियर नो। देख लीजिए आपको नीचे एज आई टोल्ड यू ना, ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में गया नहीं है बोल के आप चेक करना बोलते हो, यू कैन जस्ट चेक विद दिस। सो डाउन ट्रेंडिंग जोन कंफर्म है यहाँ पे, क्यों बोलते 21 डॉट्स, मोर देन 21 डॉट्स हैव कम बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये बाय सिग्नल नॉट वैलिड है। इसके पहले का जो 4 है, बिकॉज ऑफ नो basic conditions itself were not satisfied. So Nifty was okay in this area, but Bank Nifty was weak in this area. So that is the reason no every pullback is being shorted. And यहाँ तक आगे तक ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में चले गया था। ये सिग्नल भी आपको शॉर्टिंग पॉइंट था, इफ यू शॉर्टेड यू गॉट एक्सीलेंट मनी। सो यहाँ पे भी सेम नो, बैंक निफ्टी का चार्ट में भी दैट फिल्ट्रेशन नो, how beautifully this particular no signals are filtered no, you can see. And finally you got a buy signal here. यहाँ पे ये भी आया था आपको, you can see no, ये भी आया था, ये भी आया था। सेकंड कंडीशन ऑल्सो सैटिस्फाइड फिल्टर कैंडल बॉक्स, बट थर्ड कंडीशन अभी रेडी है। थर्ड कंडीशन में देख लीजिए, ये हाई ब्रेक हुआ तो कल मॉर्निंग, ये हाई ब्रेक हुआ तो इसमें आपको थर्ड कंडीशन ट्रिगर होता। बट प्रॉब्लम क्या बोलते कल मॉर्निंग, कल बोलते मंडे मॉर्निंग। सो मंडे मॉर्निंग आपको ये आने का चांस है, क्या है वो, अपना गैप आने का चांस है। जनरली हम क्या करते हैं, गैप अप के बाद में फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद में ही अपन इसमें बाई करते हैं। सो वेट फॉर दैट गैप अप, 15 मिनट्स के बाद में जो भी रहता है उसके ऊपर बाई कीजिए। सो गैप अप यहाँ तक आने का चांस है 44,700 या स्पॉट का चार्ट है तो स्पॉट का वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, एटलीस्ट 300-350 पॉइंट्स मिनिमम गैप अप आने का चांस है मंडे मॉर्निंग, बेस्ड ऑन द चार्ट स्ट्रक्चर एज ऑफ नो, बेस्ड ऑन द न्यूज़ एज ऑफ नो। अगर कुछ बैड न्यूज़ वगैरह आए तो नहीं बोल सकते, बट एज ऑफ नो तो दिस इज द सिनेरियो। बट ये भी आपको वी सिग्नल बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं डाउन ट्रेंडिंग जोन में, एज आई टोल्ड यू, व्हेनेवर यू आर टेकिंग अगेंस्ट नो काउंटर पोजीशन, दिस इज कॉल्ड वीक बाय सिग्नल। सो एक बार ये जीरो क्रॉस ओवर होने तक एक डिप आने का चांस है, दैट डिप हैज टू बी बॉट। सो दिस इज द सेटअप इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी में बाय सिग्नल ट्रिगर हो गया
बैंक निफ्टी में बाई सिग्नल अभी ट्रिगर नहीं हुआ, रेडी है बट इट इज़ नॉट ट्रिगर्ड, ठीक है। और एक बार अपन डॉ जोन्स का चार्ट तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, इसमें बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया। नैस्डैक में भी बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया था। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा था, दिस इज नॉट वैलिड। ये एक्चुअली वैलिड था समवेयर हियर, बट इसके ऊपर बाई ट्रिगर होता था, बाई ट्रिगर नहीं हुआ, ये कंटिन्यूएशन नॉट वैलिड। ये भी आपको वैलिड था समवेयर हियर, नो, ये पूरा अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो गया था। बिफोर दैट यू गॉट नो आउटसाइड डे सिग्नल आल्सो। सो कल आपको आउटसाइड डे से भी ये बाई सिग्नल आ गया इसमें नैस्डैक में, और नॉर्मल जो अपना हमारा बाई सिग्नल रहता वो भी ट्रिगर हो गया था। बट मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज ये कंसल्टेशन में भी यू आर नॉट ट्रैप्ड। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी से खराब कंसल्टेशन नहीं है ये, बैंक निफ्टी में तो और बहुत खराब कंसल्टेशन था, बट ये कंसल्टेशन में भी आपको आप ट्रैप नहीं हो गया बोलते हो। यू कैन सी नो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सिस्टम। सो जो हम रूल्स बोलते हैं वो रूल्स का हिसाब से काम कीजिए। आपका जो मन में आता, जो बाय करना बोल के तो सेल करना बोल के जो गेसिंग करके काम करते हैं ना, वो बंद कीजिए। एरो आते ही बाय नहीं बनता हमारे पास, नहीं तो X1 आते ही बाय नहीं बनता। सो यू हैव टू सी फॉर द कंडीशंस आल्सो, कंडीशंस मैच होने के बाद में ही इसमें बाय सिग्नल देना चाहिए। एक बार क्रूड ऑयल देखेंगे, क्रूड ऑयल का देख लीजिए। क्रूड ऑयल में सेल सिग्नल है और ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में है। दिस इज वेरी गुड नो फॉर अवर मार्केट। क्रूड ऑयल नीचे आना 95 से नाउ इट इज एट 82, बहुत फास्ट इट हैज कम डाउन, यू कैन सी। बट सॉफ्टवेयर में आपको सिग्नल मिल गया, दैट इज द रीजन मैं क्या बोलता हूँ, रूल बेस्ड सिस्टम में काम कीजिए ना। काम कर दो। ये क्रूड ऑयल सब जने क्या बोले थे, 100 जाता, 120 जाता, 130 जाता, 150 जाता। अरे तुम्हारा मर्जी है क्या रे भाई, जो मन में आता वो बोलते क्या। सिस्टम ऐसा नहीं चलता, मार्केट ऐसा नहीं चलता। जब एवरीबॉडी इज बुलिश यू मस्ट बी बेरिश, जब एवरीबॉडी इज बेरिश यू मस्ट बी बुलिश। आप ये याद रख लीजिए, इससे लॉट ऑफ मनी यू कैन मेक। सो मेनी पीपल नो गिवन रिकमेंडेशन टू बाय क्रूड ऑयल दैट विल गो टू 120 130, बट जाके क्या हो गया भाई, 95 इट हैज कम टू 82। अभी भी नीचे जाने का है, क्यों बोलते हो, डाउन ट्रेंडिंग जोन में फिर थोड़ा ऊपर आता नीचे आता, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम, ना तो ये स्ट्रक्चर आता। सो ये मैं कैसे बोल रहा हूँ बोले तो these are all proven in the market, नो। जो भी हम इतने सारे वीडियोस बनाए सो है, एक बार देख लीजिए। ये सिस्टम से आपको फर्स्ट थिंग क्या पता चलता बोलते हो, व्हाट मे हैपन, क्या हो सकता बोल के आपको आइडिया आता। क्या हो सकता बोल के आइडिया नहीं तो आप क्या कर सकते हैं मार्केट में। सो ये चार्ट में बेस्ड ऑन दिस वन नो TDF जोन्स एंड ऑसिलेटर आपको ये पता चलता कि क्या हो सकता, व्हाट मे हैपन। उसके बाद में प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट वगैरह पूरा मिल जाता। उसके बाद में नो ट्रैपिंग इन कंसल्टेशन, कंसल्टेशन ट्रैप नहीं होता। और क्या चाहिए भाई, ट्रेंड को तो पकड़ता, कंसल्टेशन में आप ट्रैप नहीं होता। और क्या चाहिए तुमको सॉफ्टवेयर से, इससे अच्छा फिल्ट्रेशन एंड एक्यूरेट सिग्नल्स कहीं पे भी नहीं मिलता। इफ़ यू लाइक दिस सिस्टम यू कैन परचेज इट फ्रॉम आवर वेबसाइट x1trader.com। अभी अपन स्टॉक चार्ट देखेंगे। फर्स्ट चार्ट इज टाइटन। टाइटन में देख लीजिए बाय सिग्नल चल रहा, यू कैन सी। ये हमारे पास नो एक्चुअली डाउन ट्रेंडिंग जोन में था। दिस वॉज अ बाय सिग्नल नॉट वैलिड हियर, इट हैज बिकम वैलिड समवेयर हियर। सो ये ब्रेकआउट में बाय सिग्नल ट्रिगर हो गया था। नाउ देख लीजिए, दो ग्रीन बॉक्स है, सो बुलिश है, किसी भी रीजन से नीचे आता और एक बार बाय कीजिए। सो दिस मे गिव यू वेरी गुड अपसाइड। एक बार ये जीरो क्रॉस हो गया था, ऑब्जर्व कीजिए ये एरिया में बिहेवियर कैसा रहता है बोल के। क्यों बोलते हो, एक बार जीरो क्रॉस होने के बाद में एक पुल बैक करने के चांसेस, दैट पुल बैक शुड बी यूज्ड एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो टाइटन में पुल बैक के लिए वेट कीजिए, बाय कीजिए। पुल बैक कहाँ तक आना बोले तो डॉट्स तक आना चाहिए, नीचे दो डॉट्स दिख रहा ना, वहाँ तक आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंडिगो। इंडिगो में देख लीजिए बाय सिग्नल हैज कम समवेयर हियर, ये नॉट वैलिड है, नॉट वैलिड, इट्स ओनली कंटिन्यूएशन। ये वैलिड सिग्नल था समवेयर हियर, ये बाय सिग्नल ट्रिगर होने के बाद में थोड़ा नीचे आया था। सेल आल्सो केम, बट इसमें देख लीजिए ये सेल सिग्नल इसके नीचे ट्रिगर होता था, ये एस्केप हो गया बोले तो दिस इज गोइंग इनटू सेमी ट्रेंडिंग जोन। ये एरिया क्रॉस होते ही सेमी ट्रेंडिंग जोन में आ गया था। एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन सी कल ये ट्रेंडिंग जोन भी स्टार्ट हो गया था। ट्रेंडिंग जोन तो पहले ही स्टार्ट हो गया था परसों। सो इट इज़ गोइंग अप ऑलमोस्ट नो फ्रॉम 2400 नाउ इट इज 2535, और एक बार ऊपर जाने का चांस है इफ देयर इज नो फ्रेश बैड न्यूज़ है तो भी एक बार थोड़ा नीचे आता, फिर डॉट्स तक आके फिर ऊपर चले जाता। सो मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज ये जो सिग्नल है ना, दिस इज नॉट ट्रिगर्ड। अगर ट्रिगर हो गया तो इसमें अपन सेल करते थे, फिर ये स्टॉप लॉस होता था। ये ट्रिगर होने का ये चांस नहीं था, ट्रिगर होने के पहले ही फिर ये मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया था। सो दिस इज हाउ नो स्टॉक्स नो फिल्ट्रेशन हो जाता सिग्नल्स में। नेक्स्ट वन इज JSW स्टील, एज आई शोन यू अर्लियर नो,
नॉन ट्रेडिंग जोन चल रहा था, दिस वाज सेल सिग्नल समवेयर इट इज़ वैलिड, एंड उसके बाद में कंसल्टेशन था। यहाँ पे तो कोई सिग्नल नहीं आ रहा। ये जो एरिया में है, जस्ट नो जूम द चार्ट, ये जो एरिया में है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बाई सिग्नल्स था, यहाँ पे बाई सेल बाई सेल बाई सेल था, बट यहाँ पे कम से कम वो भी नहीं हो रहा ना, ये बाई सिग्नल नहीं आ रहा। सो ये वीक स्टॉक है, आपको मालूम हो रहा ना भाई। डाउन ट्रेंडिंग जोन में क्या करना चाहिए, ऑल पुल बैक्स मस्ट बी शॉर्टेड। अप ट्रेंडिंग जोन में क्या करना चाहिए, ऑल पुल बैक्स मस्ट बी बॉट। पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये डॉट तक है तो शॉर्ट करो, डॉट के ऊपर गए तो और एक बार शॉर्ट करो, डॉट तक शॉर्ट करो, डॉट के ऊपर शॉर्ट करो, डॉट तक शॉर्ट करो, ऐसा ये डॉट तक आते ही और एक बार शॉर्ट करना चाहिए। एंड इसमें देख लीजिए बाई सिग्नल तो आपको कल फाइनली आ गया था, बट दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल एज ऑफ नो। प्रॉब्ली कल बिकॉज ऑफ नो अदर स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह ऊपर गए तो ये भी थोड़ा ट्राई करने का चांस है, बट दैट विल बी ए वीक बाई सिग्नल। स्टॉक्स में वीक सिग्नल्स में मत जाइए, आप ट्राई करने का चांस रहता। सो कैपिटल है तो जाइए, बट कैपिटल कम है तो वीक सिग्नल्स में काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज जुबिलेंट फूड्स। जुबिलेंट फूड्स में सेल सिग्नल चल रहा, जीरो क्रॉस ओवर एज हैपेंड समवेयर हियर। अभी तो देख लीजिए ये जो एरिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से अगर आपको बाई सिग्नल आ गई तो दैट विल बी फोर्थ बेस्ट बाई सिग्नल। सो वेट फॉर ए बाई सिग्नल जुबिलेंट फूड्स, वहाँ पे आप बाई करने की ट्राई कीजिए। नेक्स्ट अभी ये क्रॉस होने का चांस है। नेक्स्ट वन इज नो मारुति। मारुति इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चार्ट, देख लीजिए। नहीं, ये लेसन्स फ्रॉम चार्ट में कवर करता हूँ मैं, ये छोड़ दीजिए इसको। मारुति और रिलायंस दोनों को भी लेसन्स फ्रॉम चार्ट में काम करता कवर करता हूँ। नेक्स्ट इज सीमेंस। सीमेंस में देख लीजिए, आपको अप ट्रेंडिंग जोन था अर्लियर, बाद में यू गॉट ए सेल सिग्नल एंड देन यू कैन सी कंटिन्यूसली इट इज गोइंग डाउन। बीच में एक बाई सिग्नल था, इट इज नॉट वैलिड सिग्नल। दैट इज रीजन मैं क्या बोलता हूँ भाई, ये नाम से मतलब नहीं है, वी वांट ओनली नो सिग्नल से मतलब है। ये नाम किसी भी मार्केट का रहने दो, वेदर इट इज इंडियन मार्केट स्टॉक और यूएस मार्केट स्टॉक, जो भी सिग्नल आता उसमें आप काम कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन डू नो। देख लीजिए कंटिन्यूसली कितना इजीली गिर रहा है। ऑफ कोर्स नो सीधा तो किसी भी स्टॉक नहीं गिरता, थोड़ा ऊपर आता फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसा लगता कि ऊपर जाता बोल के, बट नो शॉर्टिंग पॉइंट, नो ये शॉर्टिंग पॉइंट है। एक लाइन आके फिर नेक्स्ट सेकंड लाइन नहीं आ रहा बोलो शॉर्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर ये नहीं आए तो भी सेकंड वाला आए तो भी शॉर्टिंग पॉइंट है। क्यों बोलते हो, डाउन ट्रेंडिंग जोन है, ये दोनों सिग्नल्स आए तो भी दैट विल बी ओनली वन कंडीशन, ओके। ऑल कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड इन दैट, नो। एंड ये तो कंटिन्यूइंग सिग्नल है, इट इज नॉट ट्रेडेबल सिग्नल, विल नॉट ट्रेड हियर बिकॉज ऑलरेडी सेल सिग्नल इज कंटिन्यूइंग। अगर ये बाई में गए तो ही अपन इसमें सेल कर देते हैं। सो देयर इज नो एंट्री इन कंटिन्यूएशन सिग्नल्स। कंटिन्यूएशन में कभी अपन काम नहीं करते, इंपॉर्टेंट रूल है। बिकॉज ऑफ दिस लॉट ऑफ सिग्नल्स विल बी फिल्टर्ड। नेक्स्ट वन इज नो मैकडोवेल। मैकडोवेल का चार्ट में देख लीजिए, सेल सिग्नल वाज रनिंग, उसके बाद में यू गॉट अ बाय सिग्नल हियर, ये भी आपको वीक सिग्नल है। जीरो क्रॉस ओवर कल हो जाता, उसके बाद में ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर चार्ट नो, ये एक बार पुल बैक आने का चांस है। सो दैट पुल बैक में विल बी नोइंग नो वेदर एनी स्ट्रेंथ इज देयर और कंटिन्यूएशन विल कम। सो पुल बैक के लिए वेट कीजिए मैकडोवेल में। नेक्स्ट वन इज नो बजाज फाइनेंस। ये बजाज फाइनेंस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको लॉट ऑफ सिग्नल्स आर देयर, ये अप ट्रेंडिंग जोन में चल रहा, और ये सिग्नल देख लीजिए आपको, एज आई टोल्ड यू वी वांट थ्री कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। सो दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल। क्यों बोलते इट्स ओनली कंटिन्यूएशन, और ये भी इनवैलिड सिग्नल है, और ये भी कंटिन्यूएशन है। सो ये चार सिग्नल जो है, यहाँ पे जो चार सिग्नल दिख रहा, सिग्नल तो चार्ट पे आ गया भाई, बट ये इनवैलिड है। दिस इज व्हाट विल हैपन, एज आई टोल्ड यू इन अप ट्रेंडिंग जोन क्या होता भाई, ऊपर जाता मार्केट, थोड़ा नीचे आता, थोड़े लोगों को ट्रैप करता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता। अल्टीमेटली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम विल गिव यू वैलिड सेल सिग्नल, वहाँ से फिर अपन सेल ले सकते हैं, बट दैट विल बी अ वीक सेल सिग्नल। सो क्यों आप वीक में जाते हैं भाई, इसमें रहो आप, ये ट्रेंड में रहना चाहिए आप, नॉट इन द वीक सिग्नल। ऑफकोर्स नो किसी भी स्टॉक नो 100% नो लाइफ लॉन्ग ऐसे ही ऊपर नहीं जाता, कहीं ना कहीं तो इसमें भी सेलिंग प्रेशर आता, बट दैट सेलिंग प्रेशर हैज़ टू सेटिस्फाई आवर कंडीशंस। सो ये जो एरिया फिल्टर करता, जो सॉफ्टवेयर ये जो एरिया को फिल्टर करता, वो एरिया में वो सॉफ्टवेयर को ही आप लेना चाहिए, वेदर इट इज़ माई सिस्टम और समबडी सिस्टम। हमारा ही लो बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा लीजिए, नहीं तो और किसी का लीजिए। इसको कंपेयर कीजिए, अभी हमारा चार्ट X1 सिस्टम का चार्ट बजाज फाइनेंस में कैसा है और दूसरा सॉफ्टवेयर में कैसा है। दूसरा सॉफ्टवेयर में क्या होता है भाई, आप सेल करते पहले, ठीक है, फिर बाई करते, यहाँ पे सेल करते, सेल सिग्नल समवेयर हियर और हियर विल बी सेलिंग, अगेन बाई, अगेन सेल, अगेन बाई, अगेन सेल, अगेन बाई, अगेन सेल,
ऐसा 10 बार करते फिर फाइनली आपके पास पैसा नहीं रहता, उसको छोड़ देते, वहाँ से ये ऊपर चले जाता। सो दिस इज व्हाट विल हैपन फॉर नॉर्मल ट्रेडर्स, बट हमारा सिस्टम में कंसोलिडेशन फिल्टर हो जाता ऑटोमेटिकली एंड यू विल बी इन द ट्रेंड। जो भी ट्रेंड चल रहा ना वो ट्रेंड में आप रहते हैं, ठीक है। ये बीच में का जो है ना ये सब नो, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, दिस इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर और एक बार बाय सेल आ गए तो दैट विल बी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ऐसा आप देख लीजिए, एक बार ट्रेनिंग वीडियो देखे तो आपको समझ में आया था मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज इन्फोसिस। इन्फोसिस में देख लीजिए रिजल्ट का सीजन तो स्टार्ट हो गया। एक बार रिजल्ट का रिजल्ट्स कैलेंडर है ये, ठीक है। एक बार देख लीजिए क्या है कि 9 अक्टूबर इन्फोसिस का ये आने का चांस है का। TCS का 11 अक्टूबर को आता, इन्फोसिस का 12 अक्टूबर को आता। 11 कब है भाई, 11 वेडनेसडे, 12 थर्सडे, 11 वेडनेसडे, 12 थर्सडे। थर्सडे के दिन आपको एक्सपायरी है, ठीक है, निफ्टी का एक्सपायरी रहता। तो ये सब देख लीजिए, एक बार रिजल्ट कैलेंडर में देख लीजिए, रिजल्ट्स आने वाला है IT स्टॉक्स में। आने के रिजल्ट्स के पहले आपको बाय सिग्नल तो आ गया, बट इट्स ए वीक बाय सिग्नल स्टिल नो। जो भी आपका शॉर्ट पोजीशन था दैट इज ए दिस पर्टिकुलर सिग्नल इज ए वार्निंग सिग्नल टू क्लोज ऑल दो शॉर्ट पोजीशंस। सो थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप हो रहा। मेरे पास TCS का भी एक कॉल ऑप्शन है। TCS में उतना अच्छा सेटअप नहीं है, बट it was not strong in the last half an hour 1 hour, that is the reason I have taken one ये call option। of course no buy signal तो है, ठीक है, 10-15 रुपये है तो निकल जा सकते कल मॉर्निंग। नेक्स्ट इज DLF। अच्छा ये DLF का चार्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। DLF में क्या हो गया, ये बाय सिग्नल चल रहा था इसके पहले, यू गॉट ए सेल सिग्नल, उससे नहीं ये दोनों से सेल सिग्नल आ गया था समवेयर हियर, ये सेल सिग्नल ट्रिगर भी हो गया। मैं आपको एक ये लगाता हूँ, देख लीजिए पीरियड सेपरेटर। इफ़ यू वांट इट बाय डिफॉल्ट यू कैन कीप इट। सो इसमें क्या हो गया भाई, पुराना बाय सिग्नल का ये सेल सिग्नल आ गया। आप यहाँ पे शॉर्ट करें, जो भी है ये 516, 517, 518 वहाँ पे शॉर्ट करें आप। शॉर्ट करने के बाद में नेक्स्ट डे देख लीजिए नो, ये उस दिन नेक्स्ट डे अगेन इट हैज़ ट्राई टू कम अप। सो ये पॉइंट में एक शॉर्ट करे, डॉट तक आया था और एक लॉट शॉर्ट करना था, और एक लॉट शॉर्ट करने के बाद में आपको 5-6 रुपीज़ का प्रॉफिट था। ऑफ कोर्स नो आप ये स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे ना, देयर इज़ नो गारंटी दैट नो यू वुड हैव बुक प्रॉफिट हियर। बाद में क्या हो गया, इनपुट नो ये स्टॉप मैं ये कर्जर लगा तो देख लीजिए ये सेल भी आ गया, बट ऑलरेडी अपने पास सेल है फ्रॉम X1 सिग्नल। उसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट ये दिन ना, आप ये नीचे का बॉक्सेस देख लीजिए, मैं माउस लगाता हूँ हर कैंडल के ऊपर, देखो ये 519.70 वाज द लो, ओके 518.50 या 518 में आप सेल कर दिए। बाद में इट हैज़ कम अप टू डॉट्स 531 से आपको फिर 26 से 5-6 रुपये तो मिल रहा था आपको, ऊपर नीचे। उसके बाद में देख लीजिए ऑन दिस पर्टिकुलर डे नो, कल का फ्राइडे के दिन 845 ये फर्स्ट कैंडल पे नीचे बॉक्सेस देख लीजिए, नीचे बॉक्सेस एक ग्रीन एक रेड है, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड। उसके बाद में हियर एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड। यहाँ पे देख लीजिए ये कैंडल पे 3 ग्रीन हो गया, ये कैंडल पे देख लीजिए, मैं और एक बार मूव कर रहा हूँ, ये कैंडल पे एक रेड एक ग्रीन था, बाद में 3 ग्रीन हो गया। देखा, और एक बार दिखा रहा हूँ मैं, देख लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन एक रेड था, कल का कैंडल है ये। बाद में नेक्स्ट कैंडल पे 3 बॉक्सेस आ गया ग्रीन कलर, ठीक है। नीचे वाला आप देखना चाहिए। अच्छा ये नीचे का ऊपर का डिफरेंस क्या बोलते हो, नीचे वाला जो है ना, वेर एवर वी पुट अवर माउस इट विल शो यू दैट पर्टिकुलर कैंडल वैल्यू, और ये ऊपर वाला जो है ना लेटेस्ट कैंडल जो क्लोज हुआ ना उसका वैल्यू दिखाता, उसका बॉक्सेस का जो है ना वो दिखाता। सो ये जो 518 में शॉर्ट करें आप, ये कैंडल पे आपको स्टॉप लॉस आ गया। हमारा स्टॉप लॉस का रूल क्या है, बेसिकली ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये आने के पहले ही आपको ये आ गया अभी। सो हमारा स्टॉप लॉस क्या है भाई, वो 3 EFS, वो तो नहीं है यहाँ पे, बट 3 हैज़ कम हियर, दैट इज द रीजन नो। आप सेल में है तो 3 अपोजिट बॉक्सेस नहीं आना चाहिए, आए तो इमीडिएटली बाई करो। यहाँ पे कहाँ पे बाई करें आप, 536 में बाई करें। 518 में आपको शॉर्ट हो गया,
और एक बार आप यहाँ पे शॉर्ट करें, दैट इज़ डिफरेंट। वो तो एवरेजिंग के लिए शॉर्ट करते हैं, फिर आपको चाहे तो आप लगा लीजिए, नहीं तो इंट्राडे में ऐसा के लिए 4-5 रुपये मिलते रहता, आपको बार बार वहाँ तक आता, फिर नहीं जाता, फिर बार बार नहीं जा, ऊपर नीचे होता। आपको मार्केट का नॉलेज है तो ये सब कर सकते हैं। अगर आप लेट अस अज्यूम दैट यू डिड नॉट डू एनीथिंग, 518 में भी आप सेल करें, 530, ये प्राइस क्या है, 531, 518 में भी आप सेल करें, 531 में भी सेल करें, 536 में आपका स्टॉप लॉस आ गया। तो क्या करना चाहिए भाई, यहाँ पे एक लॉट जो शॉर्ट करे, यहाँ पे एक लॉट जो शॉर्ट करे, यहाँ पे रिवर्स करना चाहिए। रिवर्स बोलते हो 4 लॉट बाई करो, ये 2 क्लोज होता, 18 रुपये का जो लॉस है ना, इसमें 18 रुपये का लॉस है, इसमें शायद 5 रुपये का लॉस है। तो कितना आ गया भाई, देखो रिवर्स क्यों करते बोले तो देख लीजिए हमारा सिस्टम में अभी ये कैंडल था 536.80, 536 से आपको 548 चल रहा है, अभी कल मॉर्निंग 555 560 तक भी जाने का चांस है। सो अभी क्या पता चला आपको, हमारा सॉफ्टवेयर में किसी भी सिग्नल फेल हुआ तो दैट विल बी ए वेरी गुड ट्रेड। फेल्ड ट्रेड इज अवर थर्ड बेस्ट बाय सिग्नल। ये जो सिग्नल था ये हमारा थर्ड बेस्ट बाय सिग्नल था, ठीक है। सो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो डरने का जरूरत नहीं है, नहीं तो रोते हुए नहीं बैठना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। बहुत जने क्या है मेरे पास आते जैसे साहब मेरे पास 50 लाख है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ये बोल के पूरा सॉफ्टवेयर लेते हैं, ये स्टॉप लॉस हिट होते हैं, सब स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं रिवर्स नहीं किया, मुझे क्या मालूम, डर लग रहा। अरे 50 लाख है तो डरने की क्या बात है तुमको, कितना है भाई, 10 रुपये का लॉस है, एक लॉट में काम करता नहीं भाई, वो क्या करता 10-10 20-20 लॉट में काम करता। अरे तुम कैपिटल का हिसाब से लॉट साइज बढ़ाना चाहिए। तुम्हारे पास 50 लाख में मैं 5 लाख करता हूँ, 10 लाख करता हूँ, वो तो ये दिस इज स्विंग ट्रेडिंग, इट्स नॉट इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर अब इंट्राडे में करना है तो क्या होता है भाई, इंट्राडे में ये जो एरिया है ना, ये जो एक ये है वेव होता है, और एक ये वेव है, और एक वन वेव, ये सब इंट्राडे में क्लोज होता, ठीक है। दिस मे बी ए न्यू वेव, 1 मिनट में कहे तो ऑल दीज आर बाय एंड सेल सिग्नल्स। इंट्राडे में काम करना है तो गो टू इंट्राडे टाइम फ्रेम, इंट्राडे सेटअप, नॉट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करने के लिए आए तो यू मस्ट हैव पेशेंस। ये डीएलएफ क्या बोल रहा भाई आपका, फॉर एग्जाम्पल नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट नो दैट इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे सेल सिग्नल था सेल कर दिया, सेल करने के बाद में ऊपर ही जा रहा है, बोले तो इट डजंट वांट टू गो डाउन। ये क्या बोल रहा भाई, मैं ऊपर मैं नीचे नहीं जाता हूँ, मुझे ऊपर ही जाने का है, मुझे नीचे जाने का पसंद नहीं है। दैट इज व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम डीएलएफ। अगर आप इसको कैच कर सके बोले तो आपका सेकंड अकाउंट में यहाँ पे बाई करो, फर्स्ट अकाउंट में ये लास्ट रिकवर होता, सेकंड अकाउंट में फ्रेश प्रॉफिट आता। सो दिस इज व्हाट, नो कॉमन सेंस का यूज कीजिए। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो यू मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू मेक एडिशनल प्रॉफिट्स। स्टॉप लॉस हिट हो गया बोलते हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। स्टॉप लॉस हिट होने का जो स्टॉक्स है पेपर में लिख के उसी में ही काम करने वाले बहुत है हमारे पास ट्रेडर्स, बट हमेशा नहीं मिलता। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो बार बार नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल हमारे पास कल एक शॉर्ट था निफ्टी में, मैं रिवर्स कर दिया, दैट इज डिफरेंट, बट निफ्टी बैंक निफ्टी में मिलना मुश्किल है रिवर्सल सिग्नल। शायद लास्ट 4-5 ईयर्स में प्रॉब्ली 2019 से हम वीडियोस बना रहे हैं, प्रॉब्ली 5-6 सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो गए होंगे, बट स्टॉक्स में मिलते रहता। सी इसमें क्या न्यूज़ आने वाला है वो डोंट नो, सम न्यूज़ इज देयर भाई, क्या न्यूज़ आता वी डोंट नो। चार्ट में तो सिग्नल आ गया और रिवर्स भी हो गया, बोलते तो समथिंग इज गुड फॉर दिस वन, दैट इज द रीजन इट इज गोइंग अप। अगर गुड नहीं है तो ये नीचे जाता था ना, ये नीचे जाके फिर ये जीरो क्रॉसर होता था, फ्रॉम देयर यू गेट अ बाय सिग्नल। सो एज ऑफ नो देख लीजिए ये अप ट्रेंडिंग जोन में चले गया। सो कल मॉर्निंग डीएलएफ किसी भी रीजन से बाई फेक, कभी कभी फेक ओपनिंग होता, 510 पे लगा के रखिए, फर्स्ट सेकंड में ही मिले तो मिला भाई, आपका जॉकपॉट है, नेक्स्ट सेकंड में 548 होता, नहीं मिलता मुश्किल है, बट ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अगर किसी भी रीजन से नीचे मिले तो इमीडिएट ले लीजिए इसको, ठीक है। 525 535 मिले तो भी इमीडिएट ले लीजिए, 10 रुपये आपको स्पॉट में मिल जाता। थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए ऐसा चीज़ों को। एंड देख लीजिए बहुत सारे चार्ट्स एक्सप्लेन किया था मारुति एंड रिलायंस के लिए, मैं कल एक वीडियो बनाता हूँ, लेसन्स फ्रॉम चार्ट बोल के, बहुत दिन हो गया मैं इस पर कॉन्सनट्रेट नहीं किया। एंड रूल्स आर सेम फॉर एवरीथिंग, रूल्स में कुछ भी चेंज नहीं होता, यूरो यूएसडी रहने दो या किसी भी रहने दो। ये क्या है, गोल्ड चार्ट है, ये X2 सिस्टम बोलते हैं इसको, X2 में कुछ रूल नहीं रहता। और 1 मिनट का चार्ट कहाँ पे चले गए भाई हमारा, ये है ना X3 सिस्टम दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए, सॉरी X4 दिखाता हूँ, देख लीजिए।
दिस इज आवर X4 सिस्टम। इसमें देख सकते हैं कल बाई में आ गया था ये। दिस इज वन मोर बाइंग पॉइंट, और ये स्टॉप लॉस है, टारगेट टारगेट आ गया था। सो ये थोड़ा दिखने में उतना अच्छा नहीं दिखता, बट काम अच्छा करता। सो इफ यू आर ऑप्शन सेलर यू कैन यूज दिस इंडिकेटर विच इज एट द बॉटम। अगर ऑप्शन बायर है तो ये स्टार वाला सिग्नल है ना, वो यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिकली हम तो प्रेफर करते हैं सेलिंग। आपको इंटरेस्ट है तो इसमें वो ले लीजिए। सो X1 सिस्टम इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग, और X3 एंड X4 आर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। X2 बीच में है, थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम में ही काम करने के लिए वो यूज़फुल है। अगर आप कंसिस्टेंट वीकली एंड मंथली इनकम चाहे तो कम टू अवर X1 आयरन फ्लाई ट्रेनिंग कोर्स, उसमें आपको सिखाते हैं आयरन फ्लाई कैसे मैनेज करना, कैसे प्रॉफिट कमाना बोल के। और अभी मेरा एक आयरन फ्लाई का पोजीशन दिखाता हूँ मैं, देख लीजिए। देख लीजिए, आप टेकन मंथली दिस वन नो 44,300 कॉल एंड पुट का ये है। अभी एज ऑफ नो यू कैन सी आफ्टर सम एडजस्टमेंट्स नो ये अभी 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट में है। दिस इज मंथली ऑप्शन, और 46,000 इज द कैपिटल एंड 4.31% ऑलरेडी प्रॉफिट में है। इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस होता 4,000 रुपये, और 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता बाय द एंड ऑफ एक्सपायरी। तो मैं कल भी क्लोज किया तो ये 2,000 रुपीज़ नो मंडे आने का चांस है। आने का चांस क्या है, गारंटी है। एंड देख लीजिए, आपको किसी भी रीजन से बीच में अगर ट्रिगर एक्सपायर हो गए तो आई एम गोइंग टू गेट 12,000 रुपीज़ ऑन 43,000। ये एडजस्टमेंट्स वगैरह बेस्ड ऑन आवर X1 सिस्टम विल डू एडजस्टमेंट, दैट इज द रीजन। वो सीखे तो आपको नॉर्मली आयरन फ्लाई विल बी सक्सेसफुल ओनली 30% ऑफ टाइम। 70% ऑफ टाइम प्रॉफिट कमाना मुश्किल है। बट हमारा सिस्टम में हमको क्या सिखाता है बोले तो, इसमें पहले तो ये जीरो लॉस हो जाता, लॉस तो नहीं आता, कितना आ सकता वो नहीं बोल सकते। कभी 5% आता, कभी 4-4% आता, कभी 10% आता, कभी 15% भी आया था मुझे। बट वी कैन नॉट से, यू कैन सी नो प्रॉफिट पोटेंशियल इज एट 26% नाउ। अगर यही रेंज में अगर एक्सपायर हो गए तो आई विल बी गेटिंग 26%, बट उतना इम्पॉसिबल है एग्जैक्टली 44,300 पे आके एक्सपायरी होना बोल के नहीं है। देख लीजिए, सेंटर पॉइंट मेरा 44,300 है। ऑफकोर्स मार्केट तो मूवमेंट होते रहता, बट इसमें टेंशन नहीं रहता आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल नो, ये इसमें लॉस इज फिक्स्ड। कुछ भी होना तो मार्केट में आपको इतना ही लॉस होता, उससे लॉस नहीं होता, वो भी नहीं होता। अभी कुछ भी बड़ा बैड न्यूज़ आए तो वो भी नहीं होता, जो सिस्टम आपको सिखाते। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू एडजस्टमेंट। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन अवर आयरन फ्लाई ट्रेनिंग कोर्स। एंड यहाँ पे देख लीजिए, देयर आर मेनी charts, no, not possible to show each and every chart. So if you're interested you can know whichever chart you want, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड बिटकॉइन का एक बार देखेंगे, बिटकॉइन है क्या, एक बार नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट वीक का चार्ट में दिखाता हूँ। सो दीज आर द चार्ट सेटअप्स फॉर नेक्स्ट वीक इन important stocks. I think we have covered more than 10-15 stocks. And if you are interested about this system, you can purchase it from our website x1trader.com. And hope this video is useful too, and let us meet in next video. Thanks for watching this video.